respected chief guest, Shri Nana Patekar ji, dignitaries, faculty members, and our dear students, on behalf of Symbiosis University Hospital and Research Center, Symbiosis Medical College for Women, Symbiosis International University, we wish you a very good evening and extend our warmest welcome for today's World Heart Day program. After the Healthy Heart Walk, an energizing activity with our team of DSRW, we are all more geared up to take this program further. Respected Chief Guest, Shri Nana Patekar ji, today is an indelible day in the life of this esteemed institute as we have you as our Chief Guest for today's program. सर, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज आप हमारे बीच में आदरणीय मुख्य अतिथि बन के आए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। Thank you, sir, for your presence, and we are filled with gratitude and can't thank you enough for gracing this occasion. Ladies and gentlemen, World Heart Day is celebrated across the world on 29th September by the World Heart Federation. Today's program is our initiative to create awareness about heart diseases and symbithia. जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, ना कि सोना और चांदी। वास्तविक धन जैसे स्वस्थ आदतें, रेगुलर व्यायाम करना, ये सब हमें रेगुलर करना चाहिए और SUHRC इसी के लिए आगे तत्पर है। Ladies and gentlemen, today we have between us our chief guest, Shri Nana Patekar ji, the true living legend of Bollywood. Shri Nana Patekar ji has been bestowed with the 4th highest civilian honor of India, the Padma Shri Award, for his dedication in the field of film and arts. Shri Nana Patekar ji, one of the most talented actor in Bollywood. Sir, not only on screen but off screen, you are a true hero. We salute your selfless work. तुमच्या समाजकारणाला सुद्धा आमचा सलाम सर. Shri Nana Patekar ji has made his way in the industry with a power-packed, award-winning performance in movies like Krantiveer, Tiranga, Ab Tak Chappan, Abharan, many movies where we have seen him. पण इथे आम्हाला अजून काहीतरी सांगायचं आहे सर. नाना म्हणताच आम्हाला आपुलकी जाणवते आणि प्रत्येक माणसाच्या चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य उमटते तुमचा उल्लेख करताना. श्री नाना पाटेकर जी, आपला परिचय देताना मी आणि इथे सर्व बसलेल्या आमच्या सर्वांमध्येच ही भावना आहे की तुम्ही आमचे तर आहात, तुम्ही आपले तर आहात, पण त्याही पलीकडे तुम्ही आमचे आहात. आणि त्याचं कारण आहे आपले ऋणानुबंध जे गेल्या 2 दशकांचे आहेत. आणि तेच सादर करायला तुमच्यासाठी एक छोटंसं सरप्राईज आहे जे आपण एक फिल्मद्वारा बघूयात. चला पाहूयात आपल्या नानांना, नाही आमच्या नानांना. Thank you team for the lovely video. Respected Chief Guest Shri Nana Patekar ji, we hope that you have liked the video, and this video has been, rather the film has been made with a lot of love and enthusiasm under the guidance of our Dean Dr. Rajiv Yerwadekar, and we are really thankful for you for gracing this occasion. Thank you Dr. Rajiv for such a beautiful video. And with this, with your permission, sir, may we move ahead. The rhyme of life is a grace of care to brighten the days with kindness shared. Each human can touch another. The difference made will last forever.
Sir, we are inspired and motivated and directed by our Honorable Chancellor, Sir, Dr. Professor S.B. Muzumdar, to serve the community with the best available health care. Care, compassion, ethical practice are the values that Sir has imbibed in us. Sir, we are guided and trained by our CEO, Sir, Dr. Vijay Natarajan, to primarily focus on delivering exceptional care for meeting the international standards in quality, safety, and patient satisfaction. In addition to providing treatment for illnesses, we empathize the preventive aspects of healthcare through educational events at large. Today's celebration of World Heart Day is one such memorable event to create awareness, and what makes it more special is your presence for this program, sir, with the dignitaries. Thank you so much once again. Now, with this, to present a small brief about our hospital, may I request our team to kindly play a small video. Leadership is not about glorious crowning acts. It's about keeping your team focused on a goal, motivated to do their best to achieve it. It is special when the stakes are high and the consequences really matter. It's about laying the groundwork for others' success and then standing back and letting them shine. And indeed, when the leadership is an exemplary one, with the great leaders and inspirations, namely our Honorable Chief Guest Sri Nana Patekar ji, Honorable Chancellor Sir, Dr. Professor S.B. Muzumdar, our Pro-Chancellor Ma'am, Dr. Vidya Yerwadekar, Vice Chancellor Ma'am, Dr. Rajni Gupte, our Dean FOHS, Dr. Rajiv Yerwadekar, our CEO Sir, Dr. Vijay Natarajan, Dean Sir, SMTW, Dr. Vijay Sagar, who are present amongst us now, and guiding light to all of us always. Surely, the product of their efforts invested is something new, innovative, excellent that the world is witnessing and will witness in future too. May I now request our dignitaries to kindly be seated on the dais. I thank all the dignitaries for coming over on the dais. May I now request Dr. Rajiv Yerwadekar, Dean, Faculty of Health Sciences, Symbiosis International University, our inspiration and our epitome of fitness. For all those who don't know, Sir is an aqua fitness expert, and already Sir has a lively heart, and I'm sure his heart is healthy too. May I now request you, sir, to kindly deliver us the welcome note. Thank you, sir. Thank you. Hi, good evening, everyone. Nana, you wanted first to ask about your faculty, so that's Dr. Ruchi Jaggi. She is the Dean of the Faculty of Media and Communication. Gagan, are you here? Gagan is also there. So हे School of Photography चे डायरेक्टर आहे. हे तुझ्या सर्किटमधली लोक आहेत. आमच्या सर्किटमधली लोक मागे बसलेले आहेत. Anyway, good evening, everyone. And well, Nana, you have seen the hospital, so you know what the hospital stands for. You're no newcomer to the Symbiosis family. You've come here umpteen number of times. And the Honorable Chancellor, Dr. Muzumdar, Dr. Vidya, Dr. Gupte, Mrs. Muzumdar, faculty members of the Symbiosis International University, and students from 8 different faculties are here. And those who are not on this campus, it's being live relayed to our off-campus centers at Nasik, Noida, Nagpur, Bangalore, Hyderabad, and Nagpur also. So you are globally or nationally visible today. Nana is family, and we take some liberties with him. And so when I told Vidya that we wanted some celebrity for World Heart Day, there could be no better epitome of fitness and family member than Nana.
आणि त्यामुळे जेव्हा नटराजन, कुशाली आणि यांनी सगळ्यांनी डीन सरांनी म्हणाले की आम्हाला कोणतरी चांगला असा वक्ता द्या who will speak and imbibe the message of fitness, Nana was first choice. And I'll just share with you one anecdote. Nana is known for his frankness amongst other things. This is not something on your Wikipedia profile. That's why I'll share that if you agree. नाना आणि मी आणि विद्या साधारण 10-12 वर्षापूर्वी एकत्र होतो. And that time I had a little paunch. And Nana tucked me on my tummy and said, "What is all this?" I said, "नाही नाना जरा जास्त." अरे म्हणे विद्यासारखी काय तुला 2 बाळणपणं झाली आहेत का तुझं पोट सुटण्यासाठी? From there on I took on fitness and hopefully you will realize that it's gone a little inside if not much. So that's Nana for you. Nana, the Symbiosis International University we are proposing as a health promoting university. आणि त्यामुळे आत्ता जे तू सगळं पाहिलं हे सगळे ॲक्टिव्हिटीज आम्ही करतोय ॲज पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन. वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशनच्या निमित्ताने we are joined by Mallar, his son. Please give him a round of applause. सो वर्ल्ड हार्ट डे निमित्त नाना हे एक निमित्त झालं तुला बोलवण्याचं. आणि असे बरेच आम्ही उपक्रम करतोय टू स्प्रेड द मेसेज ऑफ हेल्थ अँड फिटनेस अमंग्स द स्टुडंट्स अँड स्टाफ. आणि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रिक्रिएशन वेलनेस मेंटेन्स ऑल these gyms, aerobic studio, yoga and swimming pool across all campuses. All students are encouraged to participate in various fitness activities. आज जो आम्ही उद्घाटन समारंभ केला तो वर्ल्ड हार्ट डेला आहे आणि याचा सांगता समारंभ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 ऑक्टोबरला आहे. आणि या 10 दिवसाच्या कालावधीत आम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला, प्रत्येक स्टाफ मेंबरला वी हॅव एनकरेज देम टू जॉईन व्हर्च्युअल वॉक and a run event which is called as Symbiton, which I will request you to inaugurate electronically here. And the objective is that we want to ensure a healthy student population. And a healthy student population today is a healthy citizenry tomorrow. As simple as that. And this has to start young. And therefore we have caught them young. And in the college days, when they are here with us, at least for a couple of years for the postgraduate programs, 3 years or 5 years for other programs, we try to provoke and promote health and wellness and well-being in all our dimensions as a health promoting university. So thank you so much for being a part of this movement. Can we have the slides of the Symbiton and then we have Nana inaugurate it formally. So this is the Symbiton. It will be launched today, World Heart Day, World Mental Health Day la. 51 varsha. This is global participation. All our alumni are also participating in this, friends, families. And we've got close to about 6,000 participants. Dr. Naina, are you here? Dr. Naina and Shweta are the key members who have been doing all this. This is dedicated to the COVID warriors, Team Natarajan and Team Vijay Sagar, all the doctors of the Symbiosis University Hospital and Research Center. And now I would request you to come and click. Shweta, please do the honors. हे बटन दाब म्हणजे याचं औपचारिक उद्घाटन होईल आजपासून. सगळ्या लोकांना प्रवृत्त करणार आहोत आम्ही, किमान चालण्याचं तरी, पळता येत नसलं तर. थँक्यू नाना. थँक्यू एव्हरीवन. Thank you, Dr. Rajiv Redvekar, sir, for your welcome remark. And we are proud of you, sir, because you always promote health and always inspire us to be healthy and to be fit. Thank you very much, sir. किती जणांना इथे मराठी येतं आणि किती जणांना मराठी येत नाही? म्हणजे सगळ्यांनाच मराठी येते. येतंय ना? मी फार इथे बोलू इच्छित नाही, कारण नाना हा आमच्या घरातल्या सारखा आहे. रादर माझा मोठा भाऊ आहे. मुजुमदार सरांना तो वडील मानतो. पण राजीव खूप काही त्याच्या फिटनेसबद्दल वगैरे बोलला. आणि वी ऑल नो दॅट ही इज what he looks right now is what he looked even 15 years ago or 16 years ago. You saw him in the film. पण मला असं वाटतं की त्याच्यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं त्याचं काम आहे.
नामच्या फाउंडेशनतर्फे. आणि नाना, हे जे तू काम करतोयस त्याच्याबद्दल आम्हाला सगळ्यांना खूप खूप अभिमान आहे. म्हणजे तू खूप छान ॲक्टर आहेस आणि सगळ्यांना त्याचा अभिमान असेल, पण मला खरं तर नाम फाउंडेशनचं जे काम करतो त्याचा खूप अभिमान आहे. आणि मला आत्ताच कळलं, खरं मला वाटलं की ह्याचं काम फक्त महाराष्ट्रातच आहे, पण जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेरही जर जाऊन नाना काम करत असेल तर इट इज एक्सलंट. आणि मला खूप आनंद होतोय की नेक्स्ट जनरेशन मल्हार, तू ते आता पुढे नेतोयस आणि दॅट इज हिज सन हू इज टेकिंग दिस फॉरवर्ड. आणि नो पेरेंट कॅन एक्सपेक्ट एनिथिंग बेटर फ्रॉम देअर चिल्ड्रन, इफ द सेम विजन इज कॅरीड फॉरवर्ड. आणि मी नाना एवढंच सांगू इच्छिते की आमच्या इथली जी स्टुडंट्स आहेत तर त्यांना कम्युनिटी आउटरीचमध्ये आम्ही इन्व्हॉल्व करतो. आणि माझी अशी इच्छा आहे की आमच्या स्टुडंट्सनी नाम फाउंडेशनबरोबर काम करावं आणि जे काही तुमचं असेल, म्हणजे जे काही कार्य त्यांच्या हातनं होईल ह्या खेडेगावांमध्ये किंवा ह्याच्या बाहेर महाराष्ट्रामध्ये, किंवा कित्येक स्टुडंट्स हे वेगवेगळ्या स्टेट्समधनं येतात, तर ते जाऊन तेच काम त्यांच्या स्टेट्समध्ये जर त्यांनी केलं तर मला असं वाटतं की सिम्बायोसिस आणि नाम फाउंडेशन हे एकत्र येऊन खूप मोठं काम करतील. मी एवढंच बोलते आणि नाना, परत एकदा सिम्बायोसिसमध्ये तुमचं स्वागत करते. Thank you, ma'am. Thank you very much for your welcome remark. I would also like to welcome Shri Mandar Patekar ji on the stage. Thank you very much for your presence, Mandar ji. Go ahead. I would now request our Honorable Chancellor Sir, Dr. Professor S.B. Mazumdar, Padma Shri Padma Bhushan, Founder and President SIU, to kindly come forward and deliver us his pearls of wisdom. Sir is the distinguished academician, educationist, who has given us the inspiring vision of future, and he is the motivation for us to achieve that vision. So we request you to kindly come over and give us your wise words of wisdom. तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे आवडते नाना डॉक्टर राजीव, डॉक्टर विद्या, व्हाईस चान्सलर डॉक्टर रजनी गुप्ते, डॉक्टर नटराजन, मुख्य म्हणजे आम्ही नव्यानं मेडिकल कॉलेज चालू केलेलं आहे, ते केवळ मुलींच्याकरता चालू केलेलं आहे. त्याचे प्राचार्य विजय, हे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नानाची चिरंजीव मल्हार हा यायला स्टेजवर अजिबात तयार नव्हता, पण नानाचा स्वभावातले काही दोष, काही गुण माझ्याकडे आलेले आहे. म्हणून मी त्याला सांगितलं, तू जर आला नाहीस तर मी तुला खाली येऊन घेऊन येईन. तू आलास, आम्हाला सगळ्यांना फार बरं वाटलं. मला Friends, I have been seeing Nana for so many years. He has visited Symbiosis twice, thrice, I don't know how many numbers. But every time he visited, he gave us something. Every time he visited, he inspired our students. Every time he visited, he electrified the whole atmosphere. Sometimes I feel that, Nana, you are not man, you are energy. Because wherever he goes, he electrifies everybody and everything. How should I describe Nana? I have seen him in many roles. You also must have seen him in many roles. I have seen him in my house, in my office, in Symbiosis. Sometimes I find it difficult to describe Nana. But Nana, as I was coming here, I remember a story of Jim Corbett.
Jim Corbett was a wonderful hunter. He killed 108 tigers. And then at the end, he wrote his biography, autobiography. And he describes tiger in a very, very, very beautiful statement, sentence, only one sentence. And I feel that sentence truly applies to our life. And what did Corbett say about tiger? He says that tiger is a large-hearted gentleman with a boundless courage. And Nana, you are that tiger with a boundless courage and large heart. You know how large he has? I do not know, and I'm sure medically his heart must be very, very strong. But I'm not talking about that biological heart. My dear student, there is something like social heart. And it is because of that social heart in Nana that he could start Naam Foundation. And do you know how many he collected in few days? 60 crores in few days. Cheer him. It's not a joke. When you are seeing our cardiac ambulance, in fact he inaugurated it, he spontaneously told me, Dada, I want to donate similar cardiac ambulance to Symbiosis. And he laid down a condition, I will not announce it. I said, no, Nana, if you are not announcing it, I will announce it, because when Nana gives one ambulance, we will get 10 ambulances. Well, friends, Nana believes in the power of one. You students are sitting here. Each one of you should follow his advice. You are stronger. There is some invisible power in each one of you. There is Rajhans. Each one of you. But if you decide to awaken that power, to awaken that Rajhans who is inside you, you will do miracles. Nana very often gives one example. There are many potholes on the road. We blame government. We blame corporation. But Nana says, yes, do blame them. But can you not fill at least one pothole? This is the power of one. And so Nana feels that each one of you must give something, because you have already received so many things from this world, from your parents, from society. And that is how Nana believes, more in one than in many. He is like a tiger, therefore, because tiger is alone. He moves alone, he runs alone, he hunts alone, and still he has a large heart and a gentleman. So, my dear friends, if Symbiosis can produce at least 10 Nanas in the next few years, I'll be the happiest founder of Symbiosis. Just 10 Nanas, not difficult. And therefore, Nana, you must keep on coming to Symbiosis. You must keep on coming to Symbiosis, because these youngsters are the future of this country. And these
youngsters need ignition, inspiration from you. And you alone can do it, because at this age, and Nana never ages, at this stage, he remains the same Nana as he looked 10, 12 years back when he was in Symbiosis. So he is evergreen Nana, and you too will be evergreen in his presence. Nana, thank you so much for coming over here. And when I am telling you power of one, I will end my speech by what that little girl from Pakistan said about herself. She summed up her philosophy of life. You must have heard about Malala. Those Taliban guys wanted to kill her because she was going to school in Pakistan. And they shot at her. And her parents took her away to London. It was a very complicated operation. But her will was so powerful that she recovered. Not only that, she had joined Oxford University. And you know, at the age of 17, she got Nobel medal, Nobel Prize medal. This is power of one. And when some interviewer asked Malala, that little girl, BBC, what do you have to say to our youth, to this world? Malala said two lines. She said, one child, one teacher. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. That is the power of life. Thank you, Nana, for coming over. Thank you, sir. So may I request you to kindly felicitate our chief guest, Shri Nana Patekar ji. Thank you, sir, for your wise words of wisdom. And sir, the invisible seeds that you have sown in us will surely be fruitful in the years to come. सर, आमची ताकद तुम्ही आहात आणि जेव्हा तुमचं मार्गदर्शन आमच्या पाठीशी आहे, then only sky is the limit for us. Thank you so much, sir. And now, it is the time to introduce our chief guest, Shri Nana Patekar ji. क्या आप जानते हैं नाना पाटेकर जी ने अभिनय के लिए फिल्म परियार में 3 साल तक सख्त आर्मी ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद में सर ने कारगिल युद्ध के दौरान सेना में भी सर्व किया था। सर अभी तक 3 नेशनल अवार्ड 1995, 1997, 1999 जीत चुके हैं और सर 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। Thank you, sir. Sir, we request you to kindly guide us. Thank you. Thank you, sir. नमस्कार दादा, मला वाटतं की तुम्ही कधी अतिशयोक्ती करत नाही असं वाटलं होतं, आज केवढी केली, किती माझ्याबद्दल छान, मला कळेच ना कुठं पाहायचं। दादा मेरे लिए पिता समान है, ये मेरे भाई लोग हैं, सब यहाँ फैकल्टी के लोग जो सभी हैं, मैं सबको वंदन करता हूँ। आप बड़े खुशकिस्मत हैं सभी स्टूडेंट्स, इस एनवायरनमेंट में पढ़ने का मौका मिला है आप सबको, रियली यू आर लकी।
कुछ बोलने इससे पहले मैं नटराजन साहब, वो आपने जो कहा कि अपने पास 2 एम्बुलेंसेस है जो वेल इक्विप्ड अभी की, नाम फाउंडेशन की तरफ से एक और यहाँ एम्बुलेंस आ जाएगी, ताकि जिस तरह का काम, मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं 12 साल पहले यहाँ आया हुआ था, प्लीज सर, और 12 साल पहले जो देखा हुआ था आज देखा हुआ है, ज़मीन आसमान का फर्क है। और जिस तरह की सोच है दादा की, गरीब विद्यार्थी है जो गांव-गांव खेड़े से, जिसमें टैलेंट है, जिसमें ताकत है, उनको चुन चुन के जिस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, मतलब मैंने ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन मैंने शुरू से, मतलब 20 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्नति ये शब्द नहीं है, जिस तरह से वो एक 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 लेके जिस तरह के सपने दादा देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए, एक कोई छोटी सी एक बात है कि तुझा रिवर्ब थोड़ा सा कमी करशील का रे, जरा शार्प कर, रिवर्ब कमी कर, हां, कुठली फिल्म बघितली होती दादानी? आणि आनंदी गोपाळ, एक कोई फिल्म देखते हैं हम, जैसे फिल्म जब देखते हैं तो बस फिल्म देखते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं, उसका एक इम्पैक्ट दिमाग में आने के बाद ये जो सपना है वो साकार हुआ है। तो मुझे लगता है ये सपने देखना सिर्फ वो तो बहुत आसान है, उसको साकार करना बहुत, दादा लगातार इतने सालों से लगातार बिना किसी, अगर कहीं जाके देखेंगे दादा कहाँ रहते हैं तो आपको अचरज होगा किस तरह का उनका मकान है। 2 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं भाई, हालांकि जगह लगती कितनी है, लगती तो उतनी है, लेकिन बटोरना हमारी एक इंसान की एक जो आदत सी बन चुकी है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उनके लिए भी और चाहिए, लेकिन और चाहिए वो लोगों के लिए चाहिए, खुद के लिए नहीं। और इसलिए मैं नमस्कार करता हूं दादा, इसलिए जिस तरह की सोच आपने रखी है, अगर किसी भी काम के लिए, किसी भी, अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं एम ऑलवेज देयर, whenever you wish you can call me. दादा ना नंतर तू सांग मी काय म्हणालो ते, ओके? मैंने यहाँ तुम लोगों में ऑडियंस में माइक्स रखे हैं, भाषण कतई मंजूर नहीं है, तो आपको जिस कोई सवाल उठता है तो मुझे सवाल कीजिए, उसका मैं जवाब देना पसंद करूँगा। है कोई माइक आयत करे खाली? हाँ देना, कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है, यू बेटर आस्क मी समथिंग। अंग्रेजी में मैं जवाब दे नहीं सकता, इट विल पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश। गाँव खेड़े से हूँ मैं, 5वीं कक्षा में ABCD पढ़ा हूँ, तो आई डोंट हैव दैट वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लिमिटेशंस। तो हिंदी बेहतर है, जहाँ मैं अपने आप को Hello, good evening, sir. My name is Radhika Swankar. I would like to ask a question. Whenever you come across ups and downs in your life, how you overcome that situations? अप्स एंड डाउन्स तो होते नहीं, जिंदगी है भाई, तो वो तो होना ही है। कभी कभी सांस फूलती है तो हमारी ये फैकल्टी हमें सिर्फ सीधा बना देती है, लेकिन वो अप्स एंड डाउन रही है तो जिंदगी कैसी? फिर जिंदगी है तो वो होगा। हंसना ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, किसी को बताना का नहीं कि मेरी तकलीफ क्या है, वो तकलीफ गुजर जाती है, हवा के झोंके जैसी होती है, तो उसका जिक्र नहीं करने का किसी के साथ। और तुम्हारे दुख का जिक्र करोगी ना तो कोई सुनेगा भी नहीं। तुम्हारा सुख है वो बांटने के लिए सभी लोग तैयार होंगे, दुख के लिए कोई होता नहीं, तो उसका बयां मत करो उसको। ओके, Thank you, sir. हाँ
नाना नमस्कार. आपण 4 वर्ष आधी भेटलेलो तेव्हा मी तुमचा फोटोग्राफर होतो, फर्ग्युसनमध्ये होतो तेव्हा मी. हळू बोल, सावकाश हो. बोल, म्हणजे मला शब्द पोचतील. हो हो फर्ग्युसनमध्ये आपण भेटलेलो. मला फक्त एक छोटासा क्वेश्चन आहे, आणि जे स्पेशली पुण्याचे आहेत त्यांना ही गोष्ट कळेल की आज पण तुमची जी फेवरेट मिसळ आहे ती पण फर्ग्युसनचं कॅन्टीनच आहे का ती ऐकू येत बदलली नाही, आता? नीट सावकाश बोल, म्हणजे मला एक एक शब्द कळेल. ठीक आहे सर. कारण काय बघ, तुझं नाव काय? माझं नाव प्रतीक दरवडे सर. नाही कळलं. माझं नाव अमुक अमुक असं माझं बोल. नाव प्रतीक प्रल्हाद दरवडे. फर्स्ट क्लास. मला अजूनही Yes. कळलं नाही तरी पुढे बोल. सर 4 वर्ष आधी जेव्हा तुम्ही फर्ग्युसनमध्ये आलतात तेव्हा मी फर्ग्युसनमध्ये होतो. होय होय. तेव्हा तुम्ही म्हणालेलात की वैशाली आणि रुपालीपेक्षा पण आज पण फर्ग्युसनची मिसळ सगळ्यात चांगली आहे. Being a ex वैशाली Ferguson, आणि रुपालीपेक्षा फर्ग्युसनची मिसळ चांगली आहे. काय? फर्ग्युसनची मिसळ चांगली आहे. होय ना. हो, मला तेच ऐकायचं होतं सर. आज पण मी एक पुणेकर आहे आणि मला ते कन्फर्म करायचं आहे. म्हणा. तुला कसं काय ते मला कळत नाही. प्रश्न आहे. नाही, मी विचारतोय आज पण तुमचं तेच मत आहे का? माझं तेच मत. माझी मतं बदलत नाही. मी अजून पॉलिटिक्स मध्ये आलो नाही आहे ना. थँक्यू सर. नमस्कार. नमस्कार. प्रसाद शिंदे माझं नाव. प्रश्न विचारायचा होता की आताच मॅमनी पण सांगितलं की नाम फाउंडेशनचं काम आहे ते आता महाराष्ट्राच्या बाहेर पण सुरू करताय. होय तर आम्ही विद्यार्थी हे बरेच दुसऱ्या पण राज्यातनं येतो हो. म्हणजे होय. तर कशी काय आम्ही मदत करू शकतो काय त्याच्याबद्दल थोडी- निश्चितपणे सांगेन की तुम्ही ज्यावेळी आपल्याला आता चिपळूण किंवा कोकणाच्या ह्याच्यामध्ये कोकण में जो जिस तरह का जो आपत्ति आई थी बारिश ज़्यादा होने की वजह से, उस वक्त तुम्हारे जैसे बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर उस वक्त मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो उस वक्त मैं आपको इतना दूंगा. सो प्लीज़ यू पीपल शुड बी देयर. अभी भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी जो है, पहले वो नाम के साथ 2 महीने काम करने के बाद उनको डिग्री मिली गई, ऐसे उन्होंने वहाँ अनाउंस कर दिया है. तो मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे जहन में जो है, तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, उसके बाद तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा. तो जो करना है वो अभी करो. एंड इट्स रियली नाइस, यू नो. नक्कीच सर, धन्यवाद. बोला, सवाल पूछते रहो. Good evening, sir. Evening. My name is Soumya Satwani, and I am from Symbiosis Institute of Media and Communication. So, sir, my question is like when you are invited to platforms like this, when you have to deliver motivation or inspiration things to students, what keeps you thriving and motivation, like motivational things in your life? Because to deliver motivation, you first have to be motivated yourself, I believe. है कि मैं तो मोटिवेट कर सकता हूँ कि नहीं. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में मैंने किस तरह से मेरे जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम. बैठ जाना बेटा. तो अब हमको कॉलेज में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मैं था. अब फीस भरनी थी. हमारी टर्म फीस रहती थी 120 रुपया जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में. अब 120 रुपये उस वक्त बहुत बड़े थे. अब वो फीस भरनी है तो कैसे भरे भाई? घर की तो मैं तो औकात थी नहीं हमें. तो ये झेब्रा क्रॉसिंग है, हम वो पेंट करते थे, 15 रुपये मिलते थे हमको. वो रात को करना है ताकि सुबह गाड़ियाँ चलेगी, नहीं तो गीला है तो उसके 15 रुपये. तो एक रात में 6 कर दिए तो चलो 90 रुपये मिल गए. जिंदगी भर हम वही जेब्रा क्रॉसिंग तो करते नहीं रहे. उस वक्त वो एक स्टेप होती है, वो लेने के लिए हमें वो करना ज़रूरी होता है. वो करना है, उसमें क्या है. तो मोटिवेशन क्या है जिंदगी के में? सी, यू नो, एज एन एक्टर, इफ वन सीन इज गिवन टू मी एंड सलमान, देन शाहरुख, देन इरफान खान और विक्रम गोखले, एवरीबडी विल परसीव इट इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि उसके जिंदगी का जो तजुर्बा है उस तरह से वो देखेगा. मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मैंने क्या भुगता है, सो आई विल परसीव इट इन अ डिफरेंट मैनर. सो इसलिए डायरेक्टर होता है कि जो कहता है ना मुझे इस तरह से चाहिए. नहीं तो हर कोई एक्टर अलग तरीके से करेगा, लेकिन तुम्हारे अगर ज़िंदगी के कोई प्रॉब्लम है उसको जूझने के लिए तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा. तुम्हें देखना होगा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या करते हैं.
वो रियलाइज करना होगा। आखिरकार माँ बाप क्या चाहते हैं कि बस मेरा बेटा या बेटी कुछ बन गए, इसके अलावा तो तुमसे कुछ चाहते नहीं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो भुगता है उसका फल देना तुम्हारे हाथ में है। और ये छोटी छोटी मोटिवेट तो वही, वहां उनकी तरफ देखो, खुद मोटिवेट हो जाओगी। ओके। हेलो सर। सर हाँ बेटे। मेरा नाम ईशान सिद्दीकी है। आई एम फ्रॉम SIT एंड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम सबका लाइफ में कभी ना कभी किसी भी चीज़ का फर्स्ट टाइम आता है, चाहे वो करियर हो गया, हाँ, एनी एक्सपीरियंस। आपके केस में शायद मूवी हो गई, आई थिंक गगन हो गई। सो हाँ, बोलते रहे। फील आफ्टर योर फर्स्ट? तुझे वहां आने तक दोबारा बोलना पड़ेगा, फिर बोलते रहे। हाँ बोल देंगे। हाँ बोल। आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आपने गगन शूट किया था? हाँ बोल। आवाज नहीं आ रही। आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आपने गगन शूट किया था? क्या किया? आपकी फर्स्ट फिल्म जब शूट की थी, हाउ डिड यू फील? पहली फिल्म रिलीज हुई तब? आपने जब शूट खत्म किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कौन सा कोर्स? कोर्स नहीं, मूवी आपकी शूटिंग की थी आपने। बेटे मूवी मेरा धंधा नहीं है, मूवी मेरी पैशन थी, मेरा प्रोफेशन था। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम JJ स्कूल ऑफ आर्ट। आई वॉज वर्किंग विथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सो माई ब्रेड, not butter, but only bread was coming from there. So my theater and film was my passion. I'm in film faculty only because of Smita Patil. She compelled me to come here. When I did my first film, when I appeared on screen, तो मैं किसी को नहीं देख रहा था, मैं खुद को देख रहा था, मैं कैसे दिख रहा हूँ। अब ये देखने लायक चीज़ है नहीं, फिर भी मैं देख रहा था। सो पहली बार होता है तो बेटे वो वैसे तो होगा ना। जिस दिन मतलब मैंने पहली बार नाटक में जब काम किया कॉलेज में, वो लड़कियां मेरे साथ कभी कोई बात नहीं करती थी। पहली बार किसी लड़की ने मेरे गाल को ऐसे किया तो मैं तो गिर गया था यार, मैं सच कहता हूं। जो लड़की, क्योंकि वो मवाली समझते थे मुझे, ये ऐसा है बंदा, लेकिन वो नाटक में जो किरदार किया मैंने, उसकी वजह से जिस तरह से उन्होंने मेरे गाल को पकड़ा था, आज तक मैं भूल नहीं पाया। और उसके बाद मैंने सोचा कि यही फैकल्टी चालू करें तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू। पूछो। हेलो मैं सर। आप में से एक हूँ, समझे कि नहीं? पूछ ले बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर आप प्रहार मूवी में जब वो जो कमांडो वॉक की थी आपने, हाँ, तो उसके लिए सर वो बोल रहे थे कि 3 साल आपकी ट्रेनिंग लगी थी जी। तो सर वो कमांडो वॉक का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप उस बेटे देखो, कमांडो हमारे यहाँ ब्रिगेडियर साहब है, 2 है, तो उन्होंने उनका कमांडो कोर्स किया है 21 साल में, ताकि वो मैक्सिमम आप 28 साल के होंगे, उसके बाद तो तुम कर नहीं सकते। आई डिड माई कमांडो कोर्स एट द एज ऑफ 40। तो उन्होंने मुझे फॉर्म भरना पड़ा था, मर गया तो हम जिम्मेदार नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। इट इज़ क्वाइट टफ। दुनिया भर से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन कोई भी वो कमांडो कोर्स में पास नहीं हो सकते, अमेरिका के हो या कहीं दूसरे देश के। बहुत टफ है, सबसे टफ है ज़्यादा इजराइल का कोर्स है, और उसके बाद अपने इंडिया का। अगर हो सके तो देखो, ज्वाइन करना चाहोगे तो। ये सिर्फ सवाल मत पूछो कि कैसा था, एक्सपीरियंस करो। ओके। पिताजी क्या करते हैं? आर्मी में है सर। हाँ, आर्मी में है सर। आर्मी में? यस सर। इन्फेंट्री में? यस सर। कौन से? 19 मद्रास। अरे सेकंड मराठा, काली 5वीं। वेरी गुड। राम राम बोलना हमारा यस सर। पिताजी को। बिल्कुल सर। ओके, हाँ जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। बोलो, कौन है बे? सर इधर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो सर, मेरा नाम दिव्यांश झुंझुनवाला है। ये पहला बंदा है यार कोई नाम बता रहा है। थैंक यू। झुंझुनवाला? हाँ सर। अरे यार इतना बेहतरीन नाम है यार। हाँ सर। मैं सब सच्ची है, झुंझुनवाला बोलने के बाद वो ऐसे होता है, ऐसे करने का होता है। बोल बोल। हाँ सर,
सो मेरा क्वेश्चन था कि आपने जितने अपने रोल्स प्ले किए अपने फिल्म करियर में, आपका फेवरेट कौन सा था? मतलब ऐसे नहीं होता यार, इतने बच्चों में मेरा फेवरेट कौन है ऐसा नहीं, अगर नहीं। पूछा हाँ। दादा को, तो दादा कहेंगे सभी मेरे स्टूडेंट है भाई, सभी मेरे अपने हैं। तो जो भी रोल है जिसमें कुछ कमी रह गई, वो मुझे लगता है कि मेरा सबसे प्यारा। तो किस में कमी रह गई मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, लेकिन उस वक्त जो करना है वो सबसे अच्छा होता है। उसमें दायां बायां तो कर नहीं सकते, है ना? कहाँ से तू? सर मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता हो, अपना शरीर का बना है। सर बंगाली नहीं आती उतनी। अबे हट साला। साला कलकत्ता का है और बंगाली नहीं आते? नहीं सर। क्यों? सर मारवाड़ी हूँ ना। अरे यार, मैं 2 महीने की शूटिंग के लिए मैं कर्नाटक में मैं गया तो मैं कन्नड़ा बात करने लगा। तू कितने साल था कलकत्ता में? सर बचपन से। बचपन। तू बाहर मिल मेरे को। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। हाय। हेलो कहाँ है कौन? सर 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 माय नेम इज अमीसा मलिक एंड मैं IIT की हूँ। सर मेरे से आपके एक सवाल था सर, एक बार वो वेलकम वाला डायलॉग बस। कौन सा? सर वेलकम वाला डायलॉग। कौन सा? सर वेलकम वाला सर। कौन सा डायलॉग? ऐसा जिंदगी में सब कंट्रोल, कुछ है। कंट्रोल। ओके। सर और एक सर था सर। अरे दुनिया का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक कमी है वो मैं बता नहीं सकता, जाने दो। सर नाना एक दोस्त की जरूरत है, कोई दोस्त मिल नहीं रहा। हाँ, कोण बोल रहा है? नाना आशीर्वाद घ्यायला येऊ का तुमचा? पाठन? आशीर्वाद घ्यायला येऊ का तुमचा? आशीर्वाद? हा, पाया अरे यार, मी इतका कुठे म्हातारा झालो अजून? आपण ज्यावेळी भेटतो ना त्यावेळी आपण एका लेवलला असतो खरं तर. म्हणजे तुम्ही मुलं आता मला आशीर्वाद द्या. तुम्ही ग्रुप सोबत नाही नाही, मी तुम्ही एवढ्यासाठी मी म्हणतो, एवढ्यासाठी म्हणतो की कारण हे नामचं काम जे आहे ते नामचं काम करत असताना तुम्हा मुलांची मला गरज आहे. हो सर. तर त्यामुळे तुम्ही हे माझे पुढची ह्या मी बॅटन तुमच्या हातात देणार. ही रिले आहे, दादानी त्या राजूच्या आणि मॅडमच्या हातात दिला, त्यांनी त्यांच्या मुलांच्या आणि बाकीच्या नटराजन साहेब आहेत, अजून सगळे जे आहेत त्यांच्या दिलं. तर ते असं धावत पुढे जायचं आणि ही रेस पूर्ण करायची असते आणि ती कधी थांबली नाही पाहिजे. ओके, ऑल द बेस्ट. वडील काय करतात? एक्सपायर झाले. मी आहे. ओके, थँक्यू, थँक्यू. सर एकदा आमच्या ग्रुप सोबत फोटो काढा ना. येतो ना, नंतर काढूया ना. सर 2च मिनिटं. 2 मिनिटं नाही, मग तो नंतर काढतो. हा सर कोण? विचार. सर हा बोल. सर इकडे पुढे. बोल बोल बोल. हेलो सर, आई एम हीत वोरा फ्रॉम सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि वेन एवर वी डू सम गुड वर्क और टेक एनी इनिशिएटिव, देर आर पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल हु पुल अस बैक. सो हाउ टू टैकल दैट? देखो, ये तो होगा, टैकल करना है कभी कभी अच्छी जुबान से, कभी एक कान के नीचे खींच के. टैकल कैसे करना है उस वक्त सिचुएशन जैसी है उसमें तुम्हें निर्भर करता है. उसका हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई होगा नहीं. सामने से कोई 4 गुंडे आए, मैं क्या करूं? हाथ तो जोड़ना तो होगा नहीं, फिर जो होगा सो होगा यार. तो जिस तरह से उस सिचुएशन में, एक तो पहले अपनी इज्जत करना सीखो. जिस दिन अपनी इज्जत करना सीखोगे तो आसान होगा सब कुछ. ओके, डरने का नहीं भाई, समझा कि नहीं? क्या है, क्या कौन से सिचुएशन से डरता है तू बता. हाँ, इन लाइफ में हम लोग कभी कुछ भी इनिशिएट करते हैं या मुंह से निकाल, वो मुंह से निकाल. हाँ हाँ, चेहरा तो देखने दे यार, किसने सवाल कहा. तो कोई भी काम हम करने जाते हैं, अच्छा काम या किसी के भलाई के लिए, तो लोग होते हैं पीछे से बोलने वाले कि अरे वो pull ये back देखो, कर लेते हैं। आगे से बोलने वाले सही होते, पीछे से बोलने वाले सही नहीं होते. तो जो पीछे से बात करते हैं ना, उनके ऊपर ध्यान मत दो. ओके, यू आर फ्रॉम सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड नहीं नहीं, ये तो मालूम है सिम्बायोसिस से है. गांव मुंबई. 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 तो मैं गुजराती छो. हाँ. सर कोण आहे? बोल. माय सेल्फ अंकिता नयन. कुठली गाव कुठलं तुझं? गाव कौन सा है? कहाँ
I'm from Bihar. सर मैं बिहार बिहार से हूँ. ओ सर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, इतने बड़े एक्टर हो, मतलब डाउन टू अर्थ, इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ. देखो इतने दूर भागो मत. देखो बेटे एक ध्यान में रख, जब कैमरा शुरू होता है तब एक्टिंग होगी. यहाँ ना तो कोई कैमरा है, ना तो इसके पैसे मिलने वाले एक्टिंग के, तो मैं एक्टिंग क्यों करूं? और मुझे लगता है दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट अटायर. इससे बेहतरीन तो कपड़े होते ही हो नहीं सकते. हमारे इस क्लाइमेट के लिए सूट ठीक नहीं है. इट डजंट सूट्स मी. ओके तो ये सबसे अच्छा है यार. पसीना पोंछने के लिए कंधे पे है, इतना सा रुमाल लेके वही दिन भर करते रहो, उससे बेहतर ये है ना. समझे कि नहीं? तो डाउन टू अर्थ है नहीं है. और अपनी जरूरतें सीमित रखो ना तो बहुत आसान होता है जीना. पिताजी क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब का क्या? हेल्थ ऑफिसर. बहुत पैसे मिलते होंगे ना? नहीं ओके नाना. थैंक यू बेटा, थैंक यू. पूछ नाना. कहाँ से है? शुभा मिश्रा फ्रॉम उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. हाँ. SMCW से हूँ. सर सर आपने जैसे आप इतना फिल्म जो भी करते हैं तो उसमें ग्रुप का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है. ग्रुप में सब कुछ काम करना रहता है. तो आपको आपके जीवन में लोग तो ऐसे मिले होंगे जिनसे कि मतलब रहता है कि सब अपने मुताबिक नहीं रहते हैं, तो उनके साथ कैसे बना करके चलना और कैसे फिर आगे बढ़ना? नहीं, तुम आप अपना काम सही तरीके से करते रहो ना, बाकी का सब हो जाता है. कोई जरूरत नहीं. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, डू इट थरली, देन इट्स वेरी इजी. तुम्हारा ओहदा यहाँ होगा ना तो सभी लोग डरेंगे तुमसे. तुम्हारा ओहदा कम है, इफ यू आर इंफीरियर, तो फिर लोग तुमको डराएंगे. तो तुम्हारी फैकल्टी इधर ही रखो, इधर नहीं आने का. मैं हमेशा जब रिजल्ट लगता था तो मैं कभी फर्स्ट क्लास में नहीं देखता था, मैं थर्ड क्लास में पहले मेरा नंबर देखता था क्योंकि वो मेरी फैकल्टी नहीं थी. ऑलवेज आई वांटेड टू गेट इनटू ड्रामा और थिएटर और फिल्म्स. सो मैंने कभी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया. तो ये इस एनवायरनमेंट में आप लोगों को पढ़ाई का मौका मिलता है, कमाल है. गांव कौन सा है? सर इलाहाबाद से. इलाहाबाद. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट बेटे. नमस्कार. एक छोटा सा प्रश्न आहे. कोण? इथे बोला. मी डॉक्टर संजय गांधी. हाँ, हिंदी में बोलो, सबको पता चले. देखो एक हमारा नाम डॉक्टर संजय गांधी है. गांधी है. हम आपको पूछना चाहते हैं हाँ. कि आपने जब वो अजमल कसाब को वो मूवी में पोस्टमार्टम रूम में लेके गए थे मुर्दे दिखाने के लिए, उस वक्त अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था? कौन से फिल्म में? अटैक ऑफ 9/11. हाँ, 9/11 वाला अटैक का, वो जो कसाब को लेके गए पोस्टमार्टम रूम में नीचे और मुर्दों के, वो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन द सेंस? वो अभी भी कभी भी देखूं मैं वापस एक बार वो मूवी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कैसे बना ऐसे तैयार. अभी मैंने उस बच्चे को कहा कि उस वक्त की सिचुएशन क्या है उस पर निर्भर करता है. अगर मेरे सामने अगर मतलब विद्यावर में जा रहे हैं, रास्ते में 4 गुंडे आ गए और उसको तो मुझे बचाना है और मैंने बचा भी लिया उनको मार के. अब ये सवाल आपका है कि कैसे बचा लिया. उस मालूम नहीं, उस वक्त जो जुनून होता है उस जुनून की वजह से वो हो जाता है. इफ यू आस्क मी टू रिपीट दैट परफॉर्मेंस राइट नाउ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि उस वक्त उसमें जाना होता है. एक परकाया प्रवेश कहते हैं ना, उस रोल में जाओ, वहां से वापस आ जाओ, तो वो करना, वो हो जाता है, आसान है. I thought you must have required so much of preparations, म्हणजे your mindset to go to that यार, level. प्रिपरेशन तो सभी को होते है. ये बच्चे 5 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर होने के लिए, तो प्रिपरेशन तो है ही. प्रिपरेशन तो करनी है. Salute to your that presentation. थैंक यू. हाथ वही रखो और वेल्डिंग करो. Namaskar, Nana. So, good evening, sir. Evening, beta. Sir, my name is Smriti Sinha. Sir, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कब पता चला कि आपका पैशन एक्टिंग है?
क्या था कि मैं बचपन में गांव में मैं रहता था, वो मैं पिताजी से बहुत डरता था, बैठ जा, पिताजी से बहुत डरता था। और एक दिन मैंने नाटक में काम किया, मैं चौथी कक्षा में था, तो पिताजी वो नाटक देखने के लिए गांव आ गए थे बम्बई से। और मुझे लगता था पिताजी और माँ ये मेरे दूसरे जो भाई हैं उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब वो मेरे उस नाटक को देखने के लिए मुंबई से आ गए तो मुझे लगा उनका ध्यान मेरे तरफ खींचने के लिए अच्छी फैकल्टी है, उसलिए उसी दिन से नाटक की तरफ मेरा लगाव बढ़ने लगा। So that is how I got into theatre and genuinely I was inferior, too inferior. एक तो अपनी इतनी बेहतरीन शक्ल पाई थी तो वो तो जाहिर है, and believe me, to be in this field for 50 years with this kind of face and with this kind of attitude, it's difficult. Okay, anyway. नमस्कार सर. नाना एक नमस्कार, बोला बोला. मी त्रिवेणी शिंदे. माझी एक इच्छा आहे की तुम्ही एक छानसं गाणं म्हणावं. हा? गाणं म्हणावं तुम्ही. काय करायचं? गाणं, सॉन्ग. गाणं म्हणू? तुमच्या किंवा माझ्या आवडतीचं. मी गाणं म्हणेन ज्यावेळी हो. आपल्याला ह्या सगळ्यांना तुम्हाला बाहेर आम्ही साथ काढायचं देऊ. असेल ना. तुम्हाला आम्ही साथ देऊ गाणं म्हणायला. मी सगळ्यांना बाहेर काढायचं असेल त्यावेळी गाणं म्हणेन, म्हणजे ते सगळे आपोआप जातील मी गाणं म्हणायला लागल्यावर. ओके, तेवढी एकच फॅकल्टी मला येत नाही. माझा आवाज इतकं सुंदर, जर का रेड्याला ज्ञानेश्वरांच्या जर बॅकग्राऊंड नाही, सुंदर आहे हा, तुमचा आवाज. तो गद्यामध्ये ठीक आहे, पद्यात नाही. ओके, थँक्यू. नमस्कार सर. माझं नाव वैशाली आहे. मी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रिक्रिएशन वेलनेसमध्ये काम करते. माझा प्रश्न आहे की गेले कित्येक वर्ष तुम्ही तुम्हाला स्वतःला मेंटेन ठेवलंय, तर तुमचं जे एक्सरसाइज रुटीन आहे किंवा मेंटली फिजिकली फिट आहात ते सगळ्यांना इथे एक सांगा. मैं फिजिकली फिट रहने के लिए सुबह मेरे घर में जिम्नाशियम है, मेरा मतलब बम्बई में भी यहाँ भी हमेशा सोचता हूँ कि फिजिक अगर ठीक है तो बड़ा आसान है. मैंने बीच में कहा था वजन अपना सीमित रखो, क्योंकि बाद में उठाने में बड़ी आसानी होगी लोगों को. नहीं तो मरने के बाद भी गालियां देते रहेंगे, जिंदगी भर तो देते रहे. समझे कि नहीं बेटे? मजाक के तौर में मैं कहता हूं, वो मल्हार को मैंने बताया कि खेत में मैंने अपने फार्म पे सूखी लकड़ियां रखी है. मैंने कहा गुजर जाने के बाद इसमें जलाओ. अगर गीले लकड़े में जलाओगे दोस्त लोग तो आएंगे और धुआं बहुत आएगा गीले लकड़े से, तो उनके आंख में जाएगा, फिर उनके आंख से पानी आ जाएगा और जलते वक्त मुझे लगेगा मेरे लिए रो रहे, बड़े बदतमीज दोस्त हैं मेरे. तो मैंने कहा सूखी लकड़ी होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि फिजिक अगर तुम्हारा ठीक है तो बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. सुबह 2 घंटे, फिर बाद में कुछ भी करो शाम को, लेकिन सुबह 2 घंटे अपने आप को दे दो. ये बड़ी आसानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. नमस्कार सर. बोल बोल. इकडे सर. सर माझं नाव किरण गायकवाड. चिल्ला के बोल. Dear students, one last question for now. सर इकडे सर, राईट हँड साईडला आहे. बोला. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आम्हाला तुमचा खूप मोठा अभिमान आहे की एक मराठी कलावंत हिंदू. असं नका बोलू, केवळ आपण मराठी आहोत म्हणून आपण काही आहोत असं नाही. आपल्यातले हिंदी, गुजराती, मुसलमान, दलित सगळेच आपले आहेत. तर त्यामुळे फक्त मी मराठी आहे म्हणून जर तुम्हाला अभिमान वाटत असेल तर मला वाईट वाटेल. येस, परंतु सर तुमचं जे हिंदू चित्रपट सृष्टीमध्ये तुम्ही स्थान निर्माण केले आहे तुमच्या ह्या कलाकारामुळे, त्याबद्दल आम्हाला खूप मोठा अभिमान आहे. एक गोष्ट सर. दुसरी गोष्ट सर, माझ्या मुलाचं तुम्ही इन्स्पिरेशन आहात. प्रहार चित्रपट पाहिल्यापासून त्यांनी NDAचा जो ध्यास घेतलाय, ही इज नाव इन 12th सायन्स अँड ही इज प्रिपेरिंग फॉर NDA. अरे वा वा वा, ग्रेट. थर्ड सर, तुम्ही जसं नाम फाउंडेशनचं कार्य करता, आमची कंपनी ही CSR फंड खाली बऱ्याचशा कार्य करत असते. तर CSR फंड नाम फाउंडेशन ऍक्सेप्ट करतं का? काय करते हो म्हणजे ऍक्सेप्ट करते का? अरे तुझं वय काय? माझं 45 सर. 40 म्हणजे मी गाढवा बोलू शकतो. ते ऍक्सेप्ट करते म्हणजे काय? गाढवा ते करतोच आम्ही. हे गण्या यांना भेट बरं. तेवढं कर. CSR फंड पाहिजेत, कारण जितकं काम आपण करू पैसे पाहिजेतच ना रे. तेवढं कर. तुझा नंबर देऊन ठेव. ओके, बोला.
आता तू विचारणार होतास ना, हा बोल. ही पद्धत बरी पडते ना सगळ्यांना छानपैकी. सर नहीं बेटे, वो कोई ऐसे नहीं. अभी देखो ये बाढ़ आई, अभी मुझे कहीं जयपुर से फोन आया कि यहाँ ये ऐसे ऐसे बातें हैं, जैसलमेर में ऐसा काम करना है. मैंने कहा पैसे कितने लगेंगे? तो हर जगह 30,000. मैंने कहा 200 करते हैं तो देखो कितने से पैसे लगेंगे, 1,20,00,000 रुपए लगेंगे, हम करते हैं. तो कोई पूछता है अपना काम क्या है, फाउंडेशन की वजह क्या है, इनको क्या मिलता है, दादा को या राजीव को या मैडम को क्या मिलता है? कोई तनख्वाह मिलती है, कोई पैसे मिलते हैं उनको? उन्होंने ये सब ये जो खड़ा किया किस लिए किया? आप लोगों के लिए. ये मदद नहीं है, ये करते रहना है. तुझे आगे जाके तुझे करना है, फिर तेरे बच्चों ने और करना है. ये तो करना ही है यार. उसमें मतलब वजह क्या है, कैसे शुरू करते, वो शुरुआत हो जाती है. हमारे यहाँ बहुत गुर्बत बहुत है. हमारे पास 2 रोटी है तो 1.5 रोटी में हमको अपना गुजारा करना चाहिए, आधी रोटी किसी को दे दो. मैं हमेशा कहता हूँ यार, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ में जिसमें समा सकते हो उतना संभालो. गिरने से पहले लोगों को दे दो, नहीं तो भी मिट्टी में मिलने वाला है. समझे कि नहीं? तो वैसे आसान है, बहुत आसान है. थैंक यू बेटे. Ladies and gentlemen, we are sorry, but we cannot take any further. ए थांब का, थांब. कोणाला काय विचारायचं आहे? हा विचार. बोल. And my question, like everyone here has a specific dialogue. They say ki okay, Nana Patekar should say this or say this dialogue particularly. But every artist has this one dialogue that he remembers when he sleeps or when he gets up. Ki ye mera favorite part hai. So do you have any particular dialogue that from the like core of your heart you would say that this is my favorite dialogue? मैंने तभी कहा था कि एक कोई फेवरेट डायलॉग नहीं है. आज इस वक्त मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो आई एम बीइंग विथ यू पीपल. दैट इज माय बेस्ट मोमेंट एट दिस मोमेंट. सो ऐसे नहीं होता. सो दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. तो वो इतनी जो है मोमेंट्स, उसमें ये और होगी. थैंक यू बेटे. थैंक यू. थैंक यू. हाँ बोल. Hi sir, मेरा नाम दक्षिणा मुकेश. I have one request and one question. पहले रिक्वेस्ट बता. Can I hug you? Okay, question. Who's your role model, sir? Role model कौन है? Role model. अरे रोल मॉडल तो अभी आपके सामने ये है, वो तो बैठे हैं. ये ऐसे है लोग हैं, इन्हीं से इंस्पिरेशन लेना है. रोल मॉडल और क्या है, अपने आंखों के सामने होते हैं. हमारे माँ बाप अपने रोल मॉडल है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखें खोल के घर में घुमा करो. ओके ओके. गुड इवनिंग सर. सर माय नेम इज पारस गुप्ता फ्रॉम SIBM. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हर एक बंदे को एक मेंटर चाहिए होता है कि मतलब जो उसको पुश करे, उसको अपने ड्रीम एम पे लेकर जाए. तो आपके लाइफ में कौन था वो एक बंदा जिसने आपको मतलब एक्टिंग प्रमोट किया? एक्टिंग के लिए मैंने वजह बताई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बलराज सानी साहब, तुम लोगों ने देखे नहीं होंगे, मोतीलाल साहब थे, तो ये बहुत, एंथनी क्वीन थे, हैम्फ्रे बोगार्ट थे, अभी अल पचिनो है, रॉबर्ट डिनीरो है. सो दे आर अमेजिंग एक्टर्स. To get into that character, they are giving their life. So, they may die while doing that. That kind of devotion is there. So it's easy, yeah. बोला एकच प्रश्न, जगावं की मरावं हा एकच प्रश्न आहे. या दुनियेच्या उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं बेशरम लाचार आनंदानं, की फेकून द्यावं हे या देहाचं लखतर. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो नाम फाउंडेशन के लिए काम किया है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आप अगर एग्जांपल दे सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद नाम फाउंडेशन के एग्जैक्ट काम के बारे में ना पता. नाम फाउंडेशन वाटर कंजर्वेशन का काम करता है मेनली, फिर एजुकेशन में है, फिर हमारी जो शहीद जो हुए हैं हमारे जो जवान,
उनके फैमिली को मदद करते हैं। फैकल्टी कुछ भी पूछो, सभी फैकल्टी में काम करना चाहती है, तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं, लेकिन अभी जो शुरुआत हुई थी वो वाटर कंजर्वेशन, और जो हमारे किसान जो थे जिन्होंने आत्महत्या की उनके फैमिली को मदद करना, दैट इज द बेसिक मोटिव। ओके, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम सर। सलामुन अलैकुम सर, मेरा नाम अली है, मैं जौनपुर यूपी से हूँ। सर हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा फेस आता है बहुत मुश्किल वाला, सर आपकी लाइफ में भी आया हुआ, तो आप उसको फेस कैसे किए, कैसे उससे बाहर निकले? कौन सा प्रॉब्लम? सर कोई भी सर, जैसे आपका एक्टिंग करियर तो बहुत नहीं, देखो प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, जिंदगी इतनी सीधी नहीं है, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएगी, तो वो रास्ते को अपना लो, अपना कहो, डोंट ट्राई टू अवॉइड, वो तो हो जाएगा, आसान है। प्रॉब्लम आएगा तो ही मजा है ना, सभी आसान 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 जिंदगी रहेगी तो क्या है, तो ये बहुत आसान है। अभी तो कितनी उम्र है तेरी? 17। अरे बहुत जिंदगी देखनी है तुझे, बहुत आसान है कि प्रॉब्लम ऐसे 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 हल करेगा, देख तू फिक्र मत करो, प्रॉब्लम तो आने चाहिए। ओके, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू। किती वेळ आएगा? सर शेवटचा एकच, हाँ, शेवटचा एकच प्रश्न, शेवटचा 1 घंटा। ओके, लास्ट 1 hour। हेलो सर, माय नेम इज शाम्भवी, आई एम फ्रॉम SMCW। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने जो फाउंडेशन स्टार्ट किया, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया, और अगर कोई फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे? मैं टीवी देख रहा था और जिसके घर में आत्महत्या हुई थी, जो मेन आदमी था उसने आत्महत्या की थी, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और माँ बाप, वो उनका इंटरव्यू चल रहा था। घर का मेन आदमी मर गया है, उससे ज़्यादा उनके आँख में शाम को क्या करेंगे, खाएंगे क्या, ये लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि हमें ये करना चाहिए, और वहाँ से वो शुरुआत हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ पैसे दे दूंगा उन्हें। तो मेरा एक दोस्त है मकरंद अनासपुरे, तो वो वहाँ का है, उस इलाके का है, तो उसने कहा जो आप देना चाहते हैं चेक्स, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बार तो आ जाओ, फिर बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बड़ी नाराज़गी से मैं वहाँ गया, तो एक साथ 200 लड़कियाँ बैठी थी जो विधवा थी, उनके सभी के जो हस्बैंड थे उन्होंने आत्महत्या की थी। तो मेरे जहन में एक बात आई कि अगर इसमें से एक बेटी मेरी होती तो मुझे लगता है उस वक्त लगा कि ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। देन वी स्टार्टेड दिस फाउंडेशन। ओके, थैंक यू सर। कभी भी आ जाओ यार, अपने वेबसाइट पे आ जाओ, वहाँ नंबर्स है, whenever you feel like you can call us. Okay? Thank you sir. Okay, sir. Thank you sir. We are really sorry. Last 3 questions, क्योंकि हाँ सर मी मराठीत बोलीन। माझं नाव प्रथम आहे आणि मी 9वीत असताना तुमचं नटसम्राटवाला मूवी बघितला आहे। तर त्या मूवीत सगळे म्हणतात की त्या नाटकातून किंवा त्या चित्रपटातून सगळ्यांना हे शिकवायचा प्रयत्न केला की आपण आधीच्या आपल्या आईबाबांची काळजी घेतली पाहिजे। मला असं वाटतं की त्या नाटकातून आपल्याला असं शिकवायचा प्रयत्न केला की परिस्थिती असते, जसं त्यांना त्यांच्या मुलीला जेव्हा पैसे सापडतात, मग जेव्हा ती जे बघते, तिला जे ती दिसतं त्याच्यावर ती मग ऍक्शन घेते। तुम्ही आप्पा झाला होता, तुम्हाला काय वाटतं त्या नाटकातून काय शिकवायचा प्रयत्न केला? मला असं वाटतं की नाटकातून शिकवण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा एक माणूस म्हणून जगत असताना तो ज्या ज्या प्रसंगातून गेला आणि तो कसा त्याला सामोरा गेला। मुलीनं, आता उद्या तू माझी मुलगी असेल आणि मी पैसे चोरल्याचा आरोप माझ्यावर केलास तर मला काय वाटेल, आणि ते वाईट नुसतं वाटत नाही, त्याच्यानंतर मला तू मुलगी आहेस हेच मी विसरेन, म्हणजे सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नाही। आणि ते तुम्हाला असं सरतेशेवटी माणूस जगतो कशावर? इमोशन्सवर। त्याही नसतील, पैसे हे एवढेच लागतात। मला आधार वाटतो, माझी मुलं असतील, माझा भाऊ असेल, आई असतील, वडील असतील, मित्र असतील। मित्र नसतील तर दोस्त अगर नहीं है तो जिंदगी
0 है, ध्यान में रखना। माँ बाप का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है। दोस्त के लिए एक बिल्कुल अननोन पर्सन होता है, वो लड़की हो या लड़का, वो दोस्त होने चाहिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। One last question, please. Mom and Prahlad, I hope you're well. I wanted to ask you that, is there a film that you saw when you were a child that really impacted you? Is there a film that is there a film that impacted you as a child? Is there a film that impacted you when you were a child? When you were a child, you saw a film that really affected you a lot in a good way. There are so many Baba films, you know. There are so many films. Unfortunately, you are ignorant about those films because when I was a child, those films, your father also, he may not be knowing those films. Mulkarin, Shamchi Ai, दो बीघा ज़मीन, तो ये जो फिल्में थी उसने काफ़ी असर किया। बेसिकली यू आर फ्रॉम वेयर? नो यू आर फ्रॉम वेयर? पूना? कहाँ? तमिलनाडु. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. One last question, please. Last question. One last question. नमस्कार नाना, माझं नाव स्नेहल जाधव. नाना, आता सगळे तसं बोलले की टायगर, वन मॅन आर्मी, पण खूप वेळेस आपल्या लाईफमध्ये असा एक मुवमेंट येतो जेव्हा आपण स्वतः पण म्हणजे आपण स्वतःला सांभाळू नाही शकत. प्रत्येक यंगस्टरच्या लाईफमध्ये येतं. आता मेडिकल फील्डमध्ये तर खूप वेळेस असं होतं की आमच्याकडनं काही होणारच नाही. आम्हाला स्वतःला असं फील होतं की वी आर युजलेस. तर तुमच्या लाईफमध्ये हा मुवमेंट आल्यावर तुम्ही कसं डील? I never felt I'm useless. हाँ, और जो आएगा प्रॉब्लम वो वैसे तो आता है उस वक्त, वो पर्टिकुलर वक्त, और लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन के बारे में है तो बहुत आसान है। लव अफेयर के बारे में है तो देन आई कांट सजेस्ट एनीथिंग, सो विल यू प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो प्रॉब्लम आएंगे। कभी कभी लगता है कि हम शून्य हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लगता है, ये सिचुएशन आती है। बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता ही है। अगर वैसे नहीं होता है तो वो जिंदगी नहीं है। तो तुम आसानी से फिर बाद में तुम सोचती रहती रहोगी कि कितने आसानी से वो वक्त गुजर गया। वेट एंड वॉच, हैव पेशेंस, कंट्रोल। ओके, बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank you. थँक यू सर. थँक यू व्हेरी मच। सर, आम्हाला असं झालंय एक picture. की तुमच्याबद्दल आणि वन तुमच्या- फोटो सर. फोटो बाद में नहीं उतारते ना। ओके, थँक यू। आता ते बघ दादा थकलेत तिथे मला मार। सर, माय नेम इज यश कोटेचा. आई एम फ्रॉम नागपुर. मला भी मराठी नहीं येत कंप्लीट. इट्स ओके। सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरे को एक तिरंगा मूवी थी आपकी। तिरंगा मूवी में आपको जब उन्होंने वर्दी, सीनियर्स ने वर्दी का डर दिखाया था, जो आपने डायलॉग बोला था, वो आपसे मैं बेटे जिस वक्त फिल्म रिलीज होती है ना, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, सच कहता हूँ। क्योंकि अगर वो ना भूलूं मैं तो मैं दूसरा नहीं कर पाऊंगा। वो जहन से यू हैव टू वाइप इट आउट। उसके बाद तुम नया कुछ कर सकते हो। एक स्टेशन गया, उतरा, पानी पिया, वड़ा खाया, उसके बाद वो स्टेशन भूल जा, अगला स्टेशन। ओके, ऐसे ही करना, ध्यान में रखना, किसी में अटकना मत। Thank you everyone. No more question. Thank you. Thank you very much. थँक यू सर. माय नेम इज सचिन. बरेच दिवस झाला तुमचं मूवी आलेला नाहीये, तर आता नेक्स्ट मराठी किंवा हिंदी मूवी कोणता असेल? आता येईल, लवकरच येईल, त्यामुळे मग नंतर इथे यायला मिळणार नाही. पण आता ते 2 वर्ष कोविडमुळे मला करता नाही आलं. आता करू आपण, हां, मस्तपैकी छान फिल्म करू. धन्यवाद. थँक्यू दादा, माफ करा, तुम्हाला खूप वेळ बसावं लागलं. राजू, विद्या पळाली का? विद्या, माफ कर, दादांना खूप वेळ बसावं लागलं. पण ही जास्त, हे कॉन्व्हर्सेशन हे जास्त बरं वाटतं ग. इथून बसून बोधामृत पाजण्यापेक्षा हे जास्त प्रत्येकाशी मला थँक्स अ लॉट.
नेहमी मी माधुरीसाठी म्हणतो, हो हो, नेहमी मी माधुरीसाठी म्हणतो कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो. आज मी तुमच्यासाठी म्हणतो कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो. धन्यवाद, धन्यवाद, थँक्यू. तुम्ही कोणी आमच्या प्रोफेसरनी कुठला एकही प्रश्न विचारला नाही. काय? बोल 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 मला. सर मला असं वाटतं आपण हार्ट डिझीज या बऱ्याच साऱ्या डिझीज आता येतात या वयात. मला असं वाटतं की मी स्वतः सेंद्रिय शेती करतोय, म्हणजे तो माझा प्रयत्न आहे. मी फर्टिलायझर, मी पेस्टिसाईड अजिबात वापरत नाही माझ्या शेतात. मी सध्या आता माझ्यापुरती करतोय, पण मला प्रत्येकाच्या ताटामध्ये सेंद्रिय अन्न जावं अशी इच्छा आहे. त्यासाठी माझा पुरेपूर प्रयत्न आहे. मी माझे कुटुंब म्हणजे माझी बायको, माझी मुलगा छोटा आहे, एक 10वी आलेला आहे, तो सुद्धा मला या कामी मदत करतो. याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं? तू नामच्या ऑफिसला ये, तिथे मी हे सविस्तर बोलेन. कारण मी माझ्या शेतामध्ये कुठलंही नाही, फक्त शेणखत, जीवामृत म्हणजे आपल्या ह्याच्यापासून गाईच्या मूत्रापासून केलेलं एवढंच मी वापरतो. तर त्यामुळे ते तसंच करायचं. पण आता गंमत अशी आहे, ते परवडत नाही रे ती शेती. कळलं की नाही? तू ये तिथं, बोलू आपण. ओके, आता पुन्हा कधीतरी. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू. प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर. थँक्यू. आता तुला एक गंमत सांगतो. तू बोल पहिल्यांदा, तुला काय बोलायचं ते बोल, मग मी तुला सांगतो. हां, नाही नाही, मी छान, तू बोल. मला हेच म्हणायचंय की आम्हाला असं झालंय की तुमच्याबद्दल आता एक लक्षात ठेव, आपण ज्यावेळी बोलतो ना, मला एक सांगायचं आहे, असं प्रत्येक शब्दाला हेलकावा द्यायचा नाही. आता तू नशिबानं ह्याच्या मागे लपली आहेस, नाही तर मग ते तू अशी दिसतेस, माहिती आहे. ओके, थँक्यू सर. लक्षात ठेवणार आहे सर मी हे. पण आमचं पोट इथे भरलं नाहीये सर. तुम्ही आम्हाला परत आमच्या सोबत हवे आहात आणखीन अशा कार्यक्रमांमध्ये. थँक्यू पुन्हा एकदा सर. काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि नाना की तरह मिसाल बन जाए. Ladies and gentlemen, moving on, it is time to propose the vote of thanks, and for that, may I invite our CEO, sir, Dr. Vijay Natarajan, to kindly come forward to give us a vote of thanks. Good evening, everyone. It's an impossible act to follow after Nana Patekar ji has spoken, and I'm sure you would all agree. It's my proud honor and privilege to deliver the vote of thanks on this grand occasion. Not so much because it's World Heart Day, but because we have our own Nana Patekar ji in our midst. Firstly, sir, my deepest gratitude for accepting our invitation for coming here to Symbiosis. I know you are our very own family member, but we all owe a deep sense of gratitude to you for coming here today. The most down-to-earth personality, most frank, most open. I'm sure you all agree with these adjectives. Incidentally, he spoke of his handicap in English and then defended it in the most pure British English. Thank you, sir, again. We've all grown up watching your films, and all of us here in this audience are deeply influenced by that. We love watching you, and we'll watch you forever. Your interactive session with everyone here has been inspirational. Your philosophy of life has been phenomenal. And your fitness mantra as well. Personally, I'd like to thank you very much for your very magnanimous gesture of donating an ambulance to the Symbiosis University Hospital and Research Center. That will help us a long way in providing services. Yeah, the price of this ambulance, the advanced cardiac life support ambulance that sir has pledged to donate to us is 37 lakhs. So that's a huge amount. A huge amount. So thank you very much, sir. I thank Rajiv for his gracious presence and speech about the health promoting university, his usual energetic self. And if you are called pregnant, then I think the rest of us are about to deliver a kid. Thank you, Dr. Vidya, for your
great insights in the work of the NAM Foundation and letting us know that his son Mandar is carrying forward that legacy. I thank our Honorable Chancellor Sir for his trademark inspirational speech, as we've always learned so much every time he takes center stage. Here at Symbiosis, we all know, to say it in Marathi actually, की सरांचा हक्क आहे स्वप्न बघणं आणि आपल्या सगळ्यांची ती जबाबदारी आहे ते घडवणं. So I'd like to say that in English as well. It's Sir's right to dream. It's our job and responsibility to make it a reality. Thank you very much for your adjectives in describing Nana Patekar ji as the boldest lone tiger with the heart of a lion. The world will soon be running out of metaphors and similes to describe him. Thank you, VC Madam, for your gracious presence. Thank you, Mandar, for accepting to be here. Thank you so much. I'd like to thank all the directors of Symbiosis for their gracious presence here and accepting our invitation. I'd like to thank all the CEOs of the companies who also showed their presence here and accepted our invitation. I'd like to thank each one of you for commemorating the World Heart Day with the 1 mile walk. I'm sure the vast majority are happy for having participated, some glad for having survived. I'd like to thank the administrative team of SUHRC, the Symbiosis University Hospital, SMCW, and the Symbiosis International University for having helped put this program together. I'd like to thank the support team, IT team, and the hospitality team as well. Finally, I'd like to thank the organ in the human body, the human heart, without which none of us would be here, literally. And finally, of course, I can't complete my vote of thanks without thanking the rain gods for being so kind to us today and holding back on the clouds. Thank you so much. Thank you, sir, for your formal vote of thanks. I declare the formal conclusion of this function now. I wish that your heart always stays healthy and happy. Ladies and gentlemen, may I request the escorts to kindly take our guests along with them further for the program at the council hall. All the students are requested to kindly be seated till the dignitaries take their leave. Thank you. We request all the corporates and the directors to kindly join us for the program at the council hall. Thank you. Ladies and gentlemen, in case you want to get information or get connected with NAM Foundation, we have Mr. Ganesh over here. Kindly contact him for your details about the NAM Foundation. अगर आप सभी में से कोई नाम फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ मिस्टर गणेश है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं.